شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان پر جو عظیم تر احسانات کیے ہیں اور جو نعمتیں اس کی زندگی میں اسے عطا کی ہیں، یہ انسان کے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے، یا اس کی محنت یا قد و کاوش، یہ اس کا نتیجہ نہیں ہے۔ وہ رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے اپنی رحمتوں کا وافر حصہ انسان کو دیتا ہے۔ بدلے میں انسان سے بندگی مانگتا ہے، اور بندگی کا اہم ترین حصہ شکر اور اس کی تعریف، اور انسانی زندگی میں اس کا سب سے بہترین اللہ رب العزت نے جو انداز رکھا ہے وہ نماز کو رکھا۔ الصلاۃ یہ دنیا کا وہ سب سے بڑا گفٹ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو پوری شریعت زمین پہ دی، مگر جب یہ دینے کی باری آئی تو آسمانوں پہ دیا۔ اس مہینے کو ماہ معراج کہتے ہیں، اس پہ بات ہم انشاءاللہ آخر میں کریں گے، مگر ہم اس کے سب سے بڑے گفٹ اور تحفے نماز اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے اوقات کا نبوی کیلنڈر، ہم اس کے بارے میں گزشتہ ملاقات میں کچھ پڑھ چکے ہیں، کچھ کا آج خلاصہ ہوگا، اور مزید ادا اور قضا دونوں کی ٹائمنگ اور طریقہ کار پہ ہماری بات انشاءاللہ ہوگی۔ 25 کے لگ بھگ نمازیں، ان کے اوقات، ادا کا طریقہ، اور اگر رہ جائے تو قضا، یہ وہ اہم ترین مسائل ہیں جو عمومی طور پہ تفصیل کے ساتھ شاید اکٹھے بیان نہیں ہوتے۔ تو انسان کو جو سمجھ آتا ہے، جو سنتا ہے، وہ سنی سنائی پہ لگا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم نے گزشتہ ملاقات میں دی تھی، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، جسے ہم قضا میں دیکھیں گے کہ اگر میری کوئی نماز رہ گئی ہے، سمجھ لیں کہ تہجد پڑھتا تھا، تہجد رہ گئی ہے، تو مجھے نہیں پتا ہوتا میں نے کیا کرنا ہے۔ لوگ جتنے منہ اتنی باتیں۔ وتر رہ گیا ہے تو کیا کرنا ہے، مختلف لوگوں کے مختلف جواب، لیکن محبوب کا انداز کیا تھا، طریقہ کیا تھا، یہ ہمیں ازبر نہیں۔ جو نماز آج رہ گئی ہے اسے فوری نہیں پڑھنے دیا جاتا، بلکہ اسے کہا جاتا ہے کہ کل تک ویٹ کرے، کل وہی ٹائم آئے گا، اسی نماز کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ اور اگر کوئی بندہ توبہ طائب ہو کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، انابت کرتا ہے، مومن بنتا ہے، نمازی بنتا ہے، اسے ڈرا دیا جاتا ہے کہ آپ نے قضائے عمری دینی ہے، احتیاطاً ہر نماز کے ساتھ ایک نماز اور۔ ایسی ایسی باتیں جو شریعت نے مقرر نہیں کی، ہم پوری زندگی ان میں سے گزرتے رہے۔ اسی لیے بڑے سادہ سے انداز کے اندر یہ بات احباب کے سامنے رکھی گئی کہ جو میرے محبوب کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ہماری دعوت اور گفتگو یہ کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہوتی، پوری انسانیت کے لیے ہوتی ہے۔ انہیں اپنے محبوب کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، کمی بیشی ہو گئی ہے دور کرنی چاہیے، کوتاہی ہو گئی ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا چینج کرنا چاہیے۔ ماضی میں کیا کرتے تھے یہ اہم نہیں ہے، آپ کا حال کیا ہے اور آپ کا کل مستقبل کیا ہے یہ اہم ہے۔ بندہ اگر سچی توبہ کر کے رجوع کر لے، انابت کر لے اور محبوب کے انداز کو اپنا لے تو سارے شکوک و شبہات مٹ جاتے۔ اسی حوالے سے
हमने सबसे पहले जिस नमाज का जिक्र किया, पहले मैं अदा का थोड़ा खुलासा रख रहा हूं ताकि मौजू भी साथ जुड़े और जो अहबाब नहीं थे वो भी जरा उसे देख ले। नमाज फज्र, इससे पहले नमाज तहज्जुद पे हमारी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी, उस पर पूरा जुमा है। क़याम, रात का अंदाज, सुलसुल लैल, रात की 1/3 आखिरी हिस्से में महबूब जो है वो तहज्जुद अदा करते थे। 1 से लेकर के 9 तक वित्र या 11 रखते हैं या 2 आखिर में बैठ करके आखिरी उम्र में आपने पढ़ी। ये आपका रात का अंदाज रहा था कि अज़ान फज्र हो गई। फजर की टाइमिंग, इसके 3 पहलू हैं और तीनों को हमने वाज़े किया। पहला, जो ही तुलूए फज्र होती है, और इस फज्र से मुराद वो रोशनी है जो रात के जाने की और दिन के आने की फजर का खबर देती है। फजर सादिक, नमाज का टाइम शुरू है, आप नमाज पढ़ सकते हैं, एंट्री हो गई है। और ये फजर किसी नमाज के साथ नहीं मिलती, ये अपनी अलग रहती है। इसका इब्तिदाई वक्त तुलूए फजर। एक शख्स ने आकर के पूछा नमाज के टाइम, तो आपने उसे पहले दिन नमाज अव्वल वक्त में पढ़ाई और दूसरे दिन उसके आखिरी अच्छी तरह सुबह करके जब रोशनी नुमाया हो गई तो फिर पढ़ाई। और जिब्रील अमीन ने भी महबूब के साथ ऐसे ही जमात करवाई। अब इन 2 वक्तों के दरमियान वक्त है, मगर आपने जमात में अफजल तरीन और अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जो वक्त रखा है वो अव्वल वक्त। बल्कि आपसे पूछा गया कि सबसे अफजल अमल क्या है, तो आपने ये कहा कि नमाज को उसके अव्वल वक्त में अदा कर। इसके बाद हमने पढ़ा था, अभी हम कज़ा में नहीं आएंगे, कज़ा आखिर में बयान करेंगे, लेकिन सबसे आखिरी इंतहाई एंड वाला टाइम क्या है कि सूरज तुलू होने से पहले पहले अगर आप एक रकत पढ़ लेते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपको फजर मिल गई, किसी मजबूरी के साथ रह गई है तो ये मत देखें कि घड़ी के ऊपर जो है वो टाइम तुलू का आ रहा है, ममनू टाइम है। एक रकत पहले पढ़ सकते हैं, हम एहतियातन 4-5 मिनट पहले और 4-5 मिनट बाद घड़ियों में टाइम फिट कर देते हैं। और वो मस्जिदों में जब लोग आते हैं तो लिखा होता है ये ममनुआ औकात है, इनमें नमाज नहीं पढ़ी जाए। लेकिन पीछे कितना बड़ा अहम मेरा काम रह रहा है। आप एक रकत पढ़ें, मसनून है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऑथेंटिक है, मुसद्दका है, मुस्तनद है। इसके अलावा जितनी बातें हैं वो सारी लोगों की अपनी बनाई। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज बाकी रह गई। कज़ा हम बात, नमाज ज़ोहर है अव्वल वक्त। सूरज जब सर से ढल के थोड़ा सा मगरिब की तरफ गया, 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट आपकी जोहर का टाइम शुरू हो गया। यह उसका अव्वल वक्त है। और इसका आखिरी वक्त कितना है कि बिल्कुल जब सूरज सर पे था उस वक्त जो साया बनता है दीवारों का, इंसान का, किसी भी चीज का, उसको देख लें, उसके साथ अपने कद का या किसी भी चीज के साइज का साया बराबर चेक कर लें, वो जितना साया होगा वो आखिरी वक्त है जोहर का और इब्तिदाई वक्त है असर का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन उस शख्स को ये नमाज पढ़ के सूरज ढलने के फौरन बाद और अगले दिन जब जमात करवाई तो उसके आखिरी वक्त जब साया बराबर हो गया, ये जोहर का टाइम है। यहां एहतियात और दीगर चीजों के साथ एक इजाफी चीज कि शदीद तरीन गर्मी में जब नमाज पढ़ने के लिए जगह सरनई और सर और माथे जलते थे तो आपने कहा इसको ठंडा कर लिया, इतनी गुंजाइश है। लेकिन आपने अव्वल वक्त में हमेशा जोहर पढ़ी है और उसे पसंद किया है, इल्ला के जवाज के लिए उसको आपने दे दिया, इसे मुस्तकिल आदत नहीं बनानी चाहिए। असर के टाइम ये तीसरी नमाज से पहले जुमा, इस पे हमने तफसील से बात की थी। जवाल से लेके जवाल शुरू होता है तो जुमे का टाइम शुरू। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कहते कि हम जुमा पढ़ के फिर हम नाश्ता दोपहर का खाना खाते थे
और उसके बाद हम आराम करते थे और कैलूला करते थे। यानी कि ये ज़हन में रख लें कि आप इसको असर तक नहीं ले जाते, इसमें से निकलना है, घरों में पहुंचना है, खाना भी खाना है, कैलूला भी है और फिर आके असर पड़नी है। बाकी आप समझते हैं हम बसा औकात जुमे को असर तक ले जाते, ये नहीं होगा। उसके बाद असर का टाइम, असर के टाइम में जब किसी भी चीज का साया एक मिस्ल उसके बराबर हो जाता है, असर का टाइम शुरू हो जाता है। इस पे हमने बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, असहाब का अमल, अहले बैत अतहार का जिंदगी भर अमल, और चारों मशहूर फुकहा का कौल इसी पे है कि इसका असर का यह अव्वल वक्त स्टार्टिंग टाइम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्दों का भी यही मौका है। एक कौल मिलता है इमाम साहब से कि ये तब असर का टाइम शुरू होता है जब दोहरा हो, साया डबल हो जाए, लेकिन उसकी कोई सही सनद मुयस्सर नहीं है जो इमाम साहब तक जाती है। तो फिर क्यों ना ऐसे अमल को अपनाया जाए जो अफजल भी है, जो अव्वल भी है, जो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल भी है। तो ये था असर। सहाबा कहते हैं कि हम, और इसका आखिरी टाइम कब है? जब सूरज जर्द हो जाए, और बिल्कुल एंडिंग टाइम के जिसमें समझ लो कि अगली कोई इंतहा नहीं। आप सूरज गुरूब होने से पहले पहले अगर एक रकत पढ़ सकते और बाकी 3 सूरज गुरूब होने के दौरान पढ़ते तो आपको असर की नमाज मिल गई। आदत नहीं, रूटीन नहीं, लेकिन अगर कहीं हो जाए तो ये नमाज असर की इब्तिदा और आखिरी टाइम है। नमाज मगरिब सूरज गुरूब होते ही अजान हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार ये फरमाया कि 2 रकत इससे पहले पढ़ी, और तीसरी बार फरमाया कि जो चाहता है पढ़े, यानी कि वो नफल है जो मगरिब की फर्ज जमात खड़े होने से पहले आपने पढ़ी, इब्तिदाई वक्त। और इसका आखिरी टाइम सूरज के गुरूब होने के बाद जो शफक पे सुर्खी रहती है, जब वो गायब हो जाए तो ये उसका आखिरी टाइम है। और ईशा का इब्तिदाई टाइम शुरू हो जाता है जब शफक से सुर्खी, वो जो दिन की शो हो रही होती है या रोशनी की, वो खत्म हो जाती है। ईशा का टाइम शुरू, ईशा का टाइम रहता है आधी रात। इब्तिदाई वक्त में आपने पढ़ के और उसको लेट करके भी पढ़ा, और फिर फरमाया अगर मैं उम्मत में मुशक्कत न समझता तो मैं ईशा को लेट करके पढ़ा। ईशा की नमाज ये हमने फजर से लेकर के ईशा तक और जुमे समेत 6 नमाजों को देखा। 7वीं नमाज नमाज तहज्जुद के बारे में हम तफसील जिक्र कर चुके थे। ये 11 महीने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के आखिरी पहर में और रमजानुल मुबारक में आपने इसको अव्वल वक्त से लेके आखिर तक तीनों हैसियतों से पढ़ा है। मशहूर ये है कि नमाज तरावी नहीं है, ये जाती सोच हो सकती है, जाती फिक्र हो सकती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतीरे को खत्म नहीं किया जा सकता। आपकी आदत, आपकी सुन्नत 11 महीने लगातार रात के आखिरी हिस्से और रमजानुल मुबारक में आपने स्पेशली कहा मन कामा रमजान ईमान वहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ुन्बिही, जो शख्स रमजान की रातों का क़याम करता है अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ। अगर तरावी नहीं थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तरह के 20 फरामीन और अकवाल अफ़आल आदात, और बिलखुसूस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज इशा के बाद जब क़याम शुरू किया 23 को सुलुसुल लैल इब्तिदाई 3rd हिस्सा, और जब आपने 25वीं रात ये क़याम किया तो इसको आधी रात तलक किया, और जब 27वीं रात किया तो आप ये क़याम इतना लंबा ले गए कि असहाब को डर लगा, महबूब के साथियों को, कि आज सेहरी का मौका नहीं मिला। तो शुरू से लेके आखिर तक दरमियाना जितनी हैसियत, जितनी हिम्मत है, और साथ फरमा दिया जब इमाम सलाम फेर दे और वो चला जाए और आप साथ चले जाएं, आप सोए भी रहें तो पूरी रात आपको क़याम ही का सवाब मिले। ये अजर देके, इनायत देके, इख्तिलाफात को जो है, जो हम हवा देते हैं उसे खत्म करके रवाना कर दिए। उसके बाद 8वीं नमाज इसी क़याम के साथ वित्र 1 से लेके 3, 5, 7, 9 आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वित्र कैसे पढ़े, मगरिब की नमाज से इसकी मुशाबत नहीं है, या लगातार पढ़ के
आखिर में सलाम, या फिर दो दो रकत पढ़ करके आखिरी रकत अलग से पढ़ करके आप सलाम। ये नमाज वित्र और उसका तरीक़ाकार, कज़ा मैं इंशाअल्लाह बाद में जिक्र करूंगा। हमने फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने के 10-15 मिनट के बाद, जिसे हमारे सादे पंजाबी माहौल में अक्सर न लिखा होता है सवा काना, नेजा सवा नेजा, नेजा इंसान के कद से थोड़ा लंबा रखा जाता है, तो थोड़ा यानी तकरीबन 10-15 मिनट 20 मिनट का वक्फा नमाज इशराक का टाइम शुरू, आप इसे पढ़ सकते हैं। और कब तक पढ़ सकते हैं? जब तक ज़ुहा का टाइम शुरू नहीं होता। ज़ुहा वो टाइम है, अगली नमाज है 10वें नंबर पे, जिसे हम चाश्त कहते हैं। 9 से लगभग जो है वो 11 बजे तक इसका टाइम। गर्मियों के अंदर जब ऊंटनियों के बच्चे जो अभी नरम पांव रखते हैं वो जलने लग जाए तो ये उसकी नमाज का टाइम है। 11वें नंबर पे नमाज अव्वाबीन, ये आपने बताया था कि बाद लोग इसको मगरिब के बाद 6 रकत पढ़ते हैं। इमाम इब्ने कसीर ने एक कौल नकल किया है, लेकिन इसके पीछे कोई इस्तिनादी हैसियत नहीं है। बाज ने इसी को ज़ुहा, बाज ने इसी को चाश्त कहा है। और 12वें नंबर पे नमाज जनाजा, हमने बात की थी कि इसको लेट नहीं किया जाएगा, इसकी टाइमिंग जल्दी से जल्दी, मैयत को जितनी जल्दी, अगर कोई शरई प्रॉब्लम नहीं, रुकावट नहीं, कोई उसका पोस्टमार्टम नहीं होना, कोई एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंटल मामला नहीं है, कोई हादसा नहीं है, तो उसको जल्दी से जल्दी जितना है नहला के, कफन वगैरह दे के, दोस्त अहबाब इकट्ठे हो जाए, जनाजा कर दिया जाए। अगर रिश्तेदार नहीं आ पाए तो इसका अव्वल वक्त जो है वो यही है, बिला वजह इसको लेट नहीं किया जाए। 13वें नंबर पे हमने नमाज ईद उल फित्र, नमाज इशराक वाला टाइम है तुलूए आफताब से थोड़ी देर बाद। और 14वें नंबर पे नमाज ईद उल अज़हा, सेम टाइम है इसका भी। बिला वजह लेट करना, किसी की चुदराहट, कोई बुला साहब आए नहीं, ये हुआ है वो हुआ है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मसनून तरीका है वो इब्तिदाई। 15वें नंबर पे हमने नमाज इस्तिस्का, खुश्क साली हो, जरूरत हो, अगर दुआ करवानी है तो किसी भी वक्त करवाई जा सकती है, खुतबे के दौरान आपने इसके लिए दुआ फरमा दी। और अगर नमाज है, खुश्क साली है, बाकायदा इसका पहले ऐलान किया गया, जगह बताई गई, जहां ईद पढ़ी जाती थी मुसल्ला, आजकल वहां पे मस्जिद गोमामा है, वहां पे गए। गोमामा बादलों को कहते हैं, बदली वहां आई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां बाकायदा जमात करवाई। इसका तरीका का हम एक मुस्तकिल खुतबे में पढ़ चुके हैं। 16वें नंबर पे नमाज कुसूफ है। और कुसूफ चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण, जब भी सूरज ग्रहण लगता है या चांद ग्रहण, तो बाकायदा इसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनून नमाज। हमने जिक्र किया था कि अगर हमें पता है तो एडवांस पढ़ के इसको टाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास मसनून, क्योंकि वही पहले बता सकती थी कि चांद जो है फुला तारीख को ग्रहण होने वाला है, फुला वक्त होगा, आप उससे पहले पहले ये करें। तो सुन्नत ये है कि जब ये ग्रहण लगता है तो उस दौरान में इस नमाज को अदा किया जाए। 17वें नंबर पे नमाज हाजत, जब कोई तलब है, कोई हाजत है, कोई जरूरत है, तो इंसान अल्लाह के साथ मुनाजात के लिए, और इसकी दलील काना इदा हज़बहु अम्र फज़िया इला सलाह, महबूब को जब भी कोई तलब होती, परेशानी होती, प्रॉब्लम होती, कोई दुख, कोई तकलीफ होती, कोई मसला या मसाइल बनते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के घर में आके नमाज पढ़ते, नमाज शुरू कर देते। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने बदर गई। तो इसी के साथ 19वें नंबर पे नमाज तौबा, काफी सारे अहबाब इसको रखते हैं, इसकी स्पेशली कोई जरूरत तो नहीं। तौबा अगर सच्चे दिल से वैसे भी कर ली जाए तो रब कबूल कर, इस्तिगफार के साथ। और अगर 1000 दफा भी इसकी गर्दाने पड़ी जाए और ऊपर ऊपर से, जैसा कि कुछ अहबाब ने कवाली लगाई होती है, तौबा मेरी तौबा, और साथ में म्यूजिक भी चल रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका अंदाज, इस्तिगफार, अपने अंदर आजिज़ी, इनकिसारी, और उसका सबसे बेहतरीन अंदाज जो है अल्लाह के सामने नवाफिल। जो बंदा रब के करीब होता है तो सुजूद के साथ और नवाफिल के साथ होता है। 20वें नंबर पे नमाज वुजू, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जन्नत में चलने का जो सबब पूछा गया तो पता चला कि वो वुजू करके 2 रकत पढ़ते। तो ये एक बड़े शान की बात है, बड़े प्यार की बात है और एहतिमाम की बात है, हर बंदा नहीं कर सकता। लेकिन करना कब है? जब आपने वुजू कर लिया, उसके बाद आपको मौका मिला है, आपका वुजू है, आप 2 रकत पढ़ सकते हैं। और 21वें नंबर पे तहिय्यतुल मस्जिद, बड़े सारे लोग इससे भी महरूम हैं।
अल्लाह के घर का गिफ्ट है ये, इसे नाम ही तहियतुल मस्जिद दिया है, मस्जिद का गिफ्ट। आपने मना कर दिया है कि तुम में से जब कोई आए तब तक ना बैठे हत्ता यरका रकातैन, जब तक वो 2 रकत पढ़ नहीं लेते। जुमे का खुतबा भी हो रहा हो तो तहियतुल मस्जिद नहीं छोड़ना, आपने आना है, 2 रकत पढ़नी है। काफी सारे आप मसाजिद में जब खुतबा हो रहा होता है तो आके बैठ जाते हैं, जब इमाम साहब बैठते हैं तो फिर उठते हैं, या तकरीर हो रही होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 खुतबे दिए और दोनों कौम की जुबान में, इसीलिए हम पहले खुतबे में भी और दूसरे में भी अगर अरबी पढ़ते हैं तो साथ उर्दू के अंदर भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं ताकि कौम को समझ आए। हत्ता कि अगर आप हज या उम्रे पे गए हैं और आप तवाफ के लिए दाखिल हुए और मस्जिद के अंदर जमात खड़ी है तो आप साथ मिलेंगे। अगर कोई नमाज का टाइम नहीं है फिर आप डायरेक्ट जाकर के मताफ में उतर के तवाफ शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपने बैठना है तो मजबूरी है, 2-4 मिनट रहते हैं नमाज खड़े होने में से, तो फिर आप बैठने से पहले 2 रकत पढ़ के बैठेंगे तहियतुल मस्जिद, ये इसका टाइम और उसकी अहमियत। 22वें नंबर पे है नमाज एहराम। जब हम एहराम बांध लेते हैं तो बड़े सारे दोस्त बकायदा 2 रकत कह रहे होते हैं कि एहराम की 2 रकतें पढ़ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहराम की 2 रकतें स्पेशली हमें नहीं मिली, वल्लाहु ताला। आपने जब एहराम बांधा था तो उस वक्त नमाज का टाइम था, फर्ज नमाज। आपका चूंकि सफर शुरू हो रहा था तो आपने वो 2 रकतें पढ़ी। अगर आपकी फर्ज नमाज का टाइम है, आप उस वक्त एहराम बांध रहे हैं तो आप 2 रकत पढ़ लें। या वैसे आपने जाकर के मस्जिद में बैठना था, बाकी साथियों का इंतजार करना है, तहियतुल मस्जिद पढ़ लें। लेकिन फॉर स्पेशल एहराम की ऐसी नमाज लोग कहते हैं, तसव्वुर मौजूद है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा आपको स्पेशली उसकी रखते नहीं। मगर ना जैसे तवाफ के वक्त 2 रकत, इस वक्त हम 23 नंबर नमाज को देख रहे हैं, नमाज तवाफ। जब 7 चक्कर पूरे हो जाएं उसके बाद मुकाम इब्राहिम या किसी भी जगह, आजकल तो नहीं वैसे मुकाम इब्राहिम पे, जहां भी जगह मुयस्सर हो आपने 2 रकत अदा करने हैं, फिर उसके बाद सफा मरवा की साई शुरू। तो ये उसकी टाइमिंग है। 25वें नंबर पे नमाज तस्बीह। ये जुमे के दिन खवातीन इसका बाकायदा एहतमाम करती हैं। जिन लोगों ने रातों को तरावी नहीं पढ़नी होती वो भी शायद दिन को रमजान में मैं देख रहा होता हूं उसका बाकायदा ऐलान करके एहतमाम कर रहे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना इसके ऐलान की कोई दलील है, ना इसके बाकायदा इकट्ठ की कोई दलील है, ना इसके नवाफिल की जमात हो सकती है। ये नहीं कि नफल जमात के साथ नहीं पढ़े जा सकते, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज्यादा से ज्यादा जिनके नजदीक साबित है साल में एक बार, महीने में एक बार, जिंदगी में एक बार या हफ्ते में एक बार, वो जुमे वाले दिन मैं देखता हूं कि इसका एहतमाम जुमे से पहले कर रहे होते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को मुस्तनिद हैसियत से बहरहाल तरफैन अपने दलाइल देते हैं। ये तो थे नमाज की अदायगी के औकात। अब अगर नमाज रह गई है तो उसकी कज़ा, सबसे पहले हम हज़र में कज़ा को देखेंगे। हम घर में हैं, सफर में नहीं, तो ये घर के अंदर कज़ा का टाइम क्या है और ये कज़ा क्यों हुई है। पहले नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायदा कुलिया और उसूल दिया। पंजाबी में, उर्दू में याद कर लें, अरबी शायद मुश्किल हो। अन्नाइमु इज़स्तैक़िज़, सोया हुआ जब भी उठे। अलार्म लगाया था, उठना चाहता था, कोई मसला बन गया, आंख नहीं खुली, आप जब भी उठे हैं, आपको फजर का पता चल गया, 1 रकत पहले पहले पड़ी तो भी, अगर वो वक्त भी गुजर गया है तो अब आपने ये नहीं देखना कि इशराक का टाइम है, वो अबीन का टाइम है, चाश्त का टाइम है, ज़ुहा का टाइम है, चले मैं कल पढ़ लूंगा। नहीं, इसे उसी वक्त पढ़िए, एहतमाम कीजिए, ये उसकी कज़ा का टाइम है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तनद हैसियत से दलील के साथ मिला हुआ। वन्नासी इज़ा तज़क्कर, नमाज पढ़नी थी भूल गया, कहीं मसरूफियत थी, कोई प्रॉब्लम थी, मशगूलियत थी, नहीं याद आया। बंदे को हफ्ते बाद भी याद आए तो पढ़ेगा। अगर इंसान को उसके नमाज के टाइम गुजरने के बाद, टाइम गुजर चुका याद आ गया, अगली नमाज नहीं पढ़ी तो बेहतर है तरतीब के साथ, पहले ये पढ़े बाद में वो पढ़ ले। अगर वो भी पढ़ चुका है फिर याद आया कि यार मेरी तो जोर रह गई है, तो ये उस वक्त भी पढ़ सकता है, ये उसकी दलील है और ये कज़ा की टाइम है। 27वें नंबर पे कज़ाए उमरी, मैं फिर वजाहत कर दूं,
इस्लाम में लाइफ टाइम कजा का तसव्वुर कतअन और कतअन नहीं। जो दोस्त अहबाब इस पे जोर देते हैं उसका एहतिसाब उन्हीं से होना है और वही उसके जवाब दे। एक इंसान से एक नहीं पढ़ी जाती। और शरीयत का मिजाज पहले समझ ले। 3 हदीसें पेश कर रहा हूं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। बंदा काफिर था, मुसलमान हो गया, ज़ाहिर उसकी पिछली नमाजें तो रहती हैं। फरमाया अत्तौबतु तजुब्बु मा क़बल, इस्लाम यजुब्बु मा क़बलहु। इस्लाम लाने से पहले मामलात नहीं देखे जाते, वो सारे क्लियर कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकत से, ये थोड़ा बड़ा अमल है। इस्लाम से बड़ी भी कोई हिजरत है कि इंसान जुर्म को छोड़ के, गलती को छोड़ के, कुफर को छोड़ के, शिरक इल्हाद को छोड़ के इस्लाम में दाखिल हो जाए। अल्लाह इसके एवज उसके पिछले सारे मामले क्लियर कर दे। और दूसरी चीज, बंदा मोमिन है, गलती हो गई है, छूटती रही है, अत्तौबतु तजुब्बु मा क़बला, अल्लाह उसके पिछले सारे मामलात माफ कर दे। हज अल हज यजुब्बु मा क़बलहु, बात ने लिखा है कि यहाँ पे हुकूकुल इबाद मुआफ नहीं होते। चले आप हुकूकुल इबाद को साइड पे कर दें, ये हुकूकुल्लाह है और खालिस अल्लाह का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करते हैं महबूब के उसके पिछले गुनाह जो हैं वो मुआफ है और उसमें कज़ाए उम्र नहीं डाली गई। लाइफ टाइम हर नमाज के साथ एक एक करके अलग अलग पढ़े, ऐसा कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। अब आइए सफर में नमाज की पहले अदा देख लें। पहले हमने हजर की नमाजें देखी, उसमें जो कज़ा हो जाती है उसका तरीका कार। अब मैं सफर में हूं, मुझे नमाज अदा करनी है तो कैसे करनी है? उसमें नमाज सफर मुकम्मल या कसर, जमा या अलग अलग, ये 4 सूरतें होती हैं कि मुझे पूरी पढ़नी है या मैंने कसर पढ़नी है, मैंने जमा करनी है या अलग अलग पढ़नी है। मुद्दत कसर कितनी है, कितने दिन कसर कर सकता हूं, इस बारे में 4 आरा अहले इल्म के अंदर पाई जाती हैं। बाज़ ने कहा है कि 3 दिन और 1 रात, यानी कि 4 दिन गिन ले, 4 दिन तलक अगर कहीं रुकना है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का पहुंचने के बाद 8 तारीख यौमुत तरविया, 4 से 8 तक का दिन गिना है। वो लोग कहते हैं कि 4 दिन तलक जो है वो कसर है, इसके अलावा कसर नहीं है, क्योंकि बाकी आप सफर में रहे, ये आप ठहरे। और दूसरी राय, कसर नमाज तब पढ़नी है जब मुझे पता हो कि मैंने 19 दिन ठहरना है। कुन्ना इज़ा साफरना तिस्अता अशर, जब हम 19 दिन के लिए सफर में होते तो हम कसर करते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज़ ने इसको 15 गिना है, कोई इब्तिदाई 2 दिन और आखिरी 2 दिन एहतियातन जैसे भी है वो निकाल ले। और एक सूरत यह भी हो सकती है कि मैं किसी काम गया हूं, मुझे पता ही नहीं, आज होता है कल होता है, मुझे कोई परफेक्ट टाइम, मैं रुकना नहीं चाहता, जो ही मेरा काम होना है मैंने निकलना है, लेकिन काम डिले होता जा रहा है तो इसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं, साल गुजर जाए, 6 माह गुजर जाए, महीना गुजर जाए, तो ऐसी शक्ल में आपके ऊपर कसर है और आप कर सकते हैं। सही बुखारी की इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, मक़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का 19 यौमन युसल्ली रकातैन, हमने हुजूर को 19 दिन मक्का में कसर कर। बाकी लोग इसकी अपनी तौजीहात पेश करते हैं, वो एक और सूरत है। अब आइए कि मैं सफर पे निकलने लगा हूं और जोहर का टाइम हो गया, टाइम अभी लंबा है, मुझे इमरजेंसी है, मैं निकल भी सकता हूं, मैं देखता हूं कि यार वहां पे जाके भी तो रुकना है, मैं ऐसे क्यों ना करूं कि मैं यही जोर पढ़ लेता हूं। अब मैंने घर में पढ़नी है तो पूरी पढ़नी है, तैयार हो चुका हूं सफर के लिए, रेडी हूं, सवारी मेरी रेडी है, तैयार हूं बिल्कुल, लेकिन पढ़ कहां रहा हूं? असर में नमाज पढ़ूंगा पूरी। अब अगर मैंने साथ असर मिलानी है पूरी, कुछ अब आप कहते हैं कि नहीं असर का टाइम नहीं हुआ लिहाजा आप नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह तरीका मौजूद है, आपने इस सिलसिले को अपने से मोमिन के लिए जो है वो नरमी रखी थी, वो मौजूद है। दूसरी सूरत कि इंसान बाहर निकला है, चला गया है सफर पे, 2, 4, 10 किलोमीटर पे जाकर के कहीं मुनासिब जगह मिली है, ब्रेक ले ली, अब ये नमाज पढ़ना चाहता है, जोर उसने घर पढ़ ली थी, असर वहां जाके पढ़ना चाहता है, ये भी सूरत है, दोनों घर पढ़ ली थी, ये भी सूरत है। अब
ये दोनों नमाजें वहां जाके सफर में करना चाहता है तो दोनों कसर करना। जोहर असर है तो दो दो रकत, मगरब इशा है तो मगरब की 3 और इशा की 2 रकतें, फजर किसी के साथ जमा नहीं होती और फजर की नमाज पूरी है, वो सफर में हो या हाजर में हो उसकी सुन्नतें भी साथ है, और वित्र जो है वो भी सफर में हो या हाजर में हो पढ़ना होता है। अब ये तो थी सफर की अदा नमाजें और उसका तरीका। मैं दोबारा दोहरा दूं, अगर घर में अगर पढ़नी है निकलते हुए तो पूरी पढ़ी जाए, सफर में जाकर के पढ़नी है आप जमा भी कर सकते हैं, आप कसर भी कर सकते हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों कर सकते हैं। अब अगली शक्ल है 29वें नंबर पे, सफर में नमाज की कजा कैसे देनी है। मैं निकल पड़ा हूं, हत्ता कि मेरी जोहर जो है मेरे घर में कजा हो गई थी। मिसाल है, मैं घर में था, नमाज कजा होगी, उसका वक्त निकल गया। अब मैं आया हूं सफर में, तो मुझे सफर में यह कजा देनी है उस जोहर की जो घर रही थी, और तब मेरे ऊपर पूरी फर्ज थी, तो मैं कितनी दूंगा, जितनी पूरी है। और असर जो है वो मैं पढ़ लूंगा, जमा कर लूंगा, कसर कर लूंगा, वो 2 रकत। सेम मगरब का ले लें, असर का ले लें, इशा का ले लें। अब आते हैं अगली एक और सूरत कि मैं सफर के अंदर मेरे ऊपर नमाज फर्ज हो गई थी, जब मैं घर पहुंचा हूं, मैं सफर में नहीं पढ़ सका, पढ़ लेता तो ठीक, मैं घर पहुंच गया और अभी टाइम है, तो फिर मैं पूरी पढ़ूंगा। लेकिन अगर सफर में ही वो वक्त गुजर गया है नमाज का और मैं घर पहुंचा हूं, तो घर पहुंच के भी मैं कसर करूंगा, क्योंकि जब मेरे ऊपर उसकी फर्जियत की टाइमिंग गुजर रही थी वो मेरे पे कसर थी। लिहाजा ये वो शक्ल है कि घर में रह के भी कसर ही अदा की जाएगी, क्योंकि कजा हालत सफर में हुई है और मेरे ऊपर वाजिब उतनी थी और टाइम गुजर चुका है। अब इसके बाद नमाजे फजर की कजा भी हो गई। हम इस वक्त 31 नमाजों का और कायदा और उसूल यहां याद कर लें कि जिस हालत, या मैं इसकी 2 चीजों की मिसाल देना चाहता हूं और इंशाल्लाह हम इस पे बकायदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान भी पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। हमारे पास 18 घंटे की फ्लाइट है, सवारी पे आपने फर्ज नहीं पढ़े, मैं फजर पढ़ के रवाना हो गया हूं, मेरी 4 नमाजें उसमें आ गई हैं, 5 आ गई हैं। क्या पूरी फ्लाइट तकल्लुफ करके फ्लाइट पे नमाज पढ़ेगी? अक्सर को कहा कि राय यह है कि हां पढ़ ली जाए, ट्रेन है पढ़ ली जाए। आपने सिर्फ नफल नमाज सवारी पे पढ़ी। यहां इज्तिहाद आके खड़ा है, एक साइड पे नस खड़ी है, और मैं ये समझता हूं कि जब नस मौजूद है तो बेहतर है कि उसी को अपनाया जाए और उसी को फॉलो किया जाए। आते हैं उस नस की तरफ भी, लेकिन पहले जो शक्लें हैं फ्लाइट की, बड़े सारे लोगों को मैंने देखा है वो पढ़ रहे होते हैं रेल की सीटों पर, या उतर करके या बैठ करके, बसों में भी। मैंने अक्सर नोट किया है कि बसों के ऊपर कैब वगैरह, बच्चों के पेशाब के मसाइल हम देखते हैं। गाड़ी को जितना मर्जी वो नीट वाश करते रहे, बहरहाल ये होता है। तो जो जगह पाक होनी चाहिए उसमें जिस्म भी, जगह भी और नीयत भी, कपड़े भी, ये चारों चीजें पाक होती हैं तो फिर नमाज होती है। और अल्लाह ताला ने जमीन सारी तहूर बना दी है, सिवाय उन 7 जगहों के जिनसे मना किया गया। तो अब क्या है, मैं गाड़ी में बैठ के पढ़ूं? हुजूर ने फर्ज पढ़ी नहीं, हमें कोई दलील मिली नहीं। नवाफिल आपने पढ़े हैं, गधे के ऊपर भी, अपनी मुख्तलिफ सवारियों पे जिन जिन पे आपने सफर किया है। अब आते हैं दलील क्या है मेरे पास, किस हवाले से मैं कहां तलक हूं। लेकिन वो दलील जानने से पहले मैं जंग में औकात पे नमाज भी जिक्र करूं। जंग में नमाज खौफ जंग शुरू होने से पहले तो हमने जिक्र की थी, उसका तरीकाकार क्या, उसका टाइमिंग क्या। लेकिन जंग शुरू हो गई है, क्या वहां मैं नमाज शुरू कर दूं? अकल, दानाई और शरीयत ने याद रखा है नमाज बड़ी अहम है, बड़ी जरूरी है, लेकिन इसमें आप इसको लेट कर दें। जोहर हो गई है, पढ़ूं? नहीं। असर जंग खत्म हुई है? नहीं, रहने दीजिए। मगरिब जंग खत्म हुई है? नहीं, मैं हालत जंग में हूं। इशा हत्ता कि आधी रात गुजर गई, पढ़ूं? कहा नहीं। जब आप
इससे फारिग हो जाए और मुतमिन हो जाए कि अब कोई जंग का मैटर नहीं, तो आप उस वक्त सारी नमाजें जमा कर सकते। शरीयत ने ये आसानी रखी है और ये उसूल रखा है, ज़ाबिता रखा है। इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान सुनिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आपके सहाबी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े महबूब सहाबी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ये बयान करते हैं। इनका ये बयान करना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस के साथ मौजूद है। कहते हैं कि हम ग़ज़वा अहज़ाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफिरों में टफ टाइम दिया, हत्ता कि हमारी ज़ोहर रह गई, असर रह गई, मगरिब रह गई, ईशा का वक्त भी गुजर गया। अगर कभी खंदक की रातें पढ़नी हो तो ये कलेजे जब मुंह को आ रहे थे, इसका तज़किरा बिलख़ुसूस इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने उसकी जो मंजर कशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी से, एक बुजुर्ग सहाबी जिनको नौजवान ने बात की थी तो उन्होंने जवाबन कहा, बेटा अगर आप उस वक्त साथ होते तो आपको पता होता, जो नहीं होता उसे इल्म नहीं होता। बहरहाल ये नमाजों की मोहलत न मिली, वक्त गुजर गई। जब फुर्सत मिली तो आपने क्या किया, ये बड़ी अहम बात है। आपने क्या किया? अजान कही जाएगी कि नहीं? हमारे यहां मशहूर यह है कि नमाज का वक्त गुजर गया तो अब अजान कहोगे, लोकी की कहने, मलयाले की कहने, परेशान हो जाएंगे। हाँ, आप उनको परेशान नहीं करें। जिन लोगों की रही है आप उनमें रह के अजान कहने, ऊपर वाले स्पीकर आप ना यूज करें जिनमें है, लेकिन अजान कही जाए। मैं इसकी एक और मिसाल भी देता हूं। कई दफा कॉन्फ्रेंस के दौरान मगरिब और इशा की नमाज लोग इकट्ठे करते हैं, ये जोर असर और अजान तब कहते हैं। मसलन ईशा की एक दफा अजान 11 बजे, मैंने कहा कि अब नीचे वाले स्पीकरों में कह लें, अगर कहनी है तो अपने वक्त पे कहें, जिन्होंने आना है वो आए और पढ़े, नहीं तो इसको कम से कम लोगों को परेशान। बहरहाल अजान होगी। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा गया, आपने अजान कही। जिंदगी रही तो कभी खंदक के वाक़े को जब बयान करेंगे, लेके आएंगे, उसमें हकाम मसाइल के अंदर इसकी डिटेल फिर देंगे। बहरहाल अजान हुई, फिर आपने कहा कि इकामत कहो। इकामत कही गई जोहर की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमात करवाई, 4 रकत पढ़ी, जोहर की जमात करवाई। फिर उसके बाद कहा गया इकामत कहो। फिर असर की नमाज पढ़ी गई, फिर कहा गया इकामत कहिए। फिर मगरिब की नमाज पढ़ी गई, फिर कहा कि इकामत कहिए। इकामत कही गई और आपने नमाज ईशा पढ़ाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तर्ज, ये अंदाज सुनन नसाई ने भी उसमें मौजूद है, इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद में मौजूद है। अब आइए, इसमें से हमें मिला क्या? एक बहुत बड़े सवाल का जवाब कि जब कज़ा देनी है तो सुन्नतें पढ़नी है या नवाफिल पढ़ने हैं कि नहीं? जवाब मिल चुका है। वगरना यह बयान का वक्त था या बयान करना जरूरी था। नमाजें रह गई हैं तो कज़ा फर्ज की होगी, कज़ा फर्ज की होगी, ये मेरे जिम्मे थी, लाजमी थी। नवाफिल और सुनन छोड़े तो नहीं जाते, लेकिन जब वक्त हो उस वक्त पढ़े जाएंगे, जब वक्त नहीं है तो फिर इनको जमा करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे पास अब आखिरी 2 चीजें रह गई। एक, तहज्जुद मेरी रात को रह गई, दिन चढ़ गई है, क्या करूं? 12 रकतें अदा फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही हदीस है, जब आपको कहीं रात रह गई, यह कहा कि रह जाए तो दिन को आप 12 रकत। और वितर की कज़ा हम जिक्र कर चुके हैं कि फजर से पहले टाइम मिल जाए, फजर के बाद टाइम मिले, या आपको दिन को भी किसी वक्त याद आए तो आप उसकी कज़ा दे लेंगे। ये नमाजों के औकात, अदा और कज़ा, सफर और हज़र, जमा अलग अलग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी यहां मिसाल भी दे दूं। बड़े सारे दोस्त अहबाब अहले इल्म होते हैं, मगर पता नहीं उन्होंने कसम खाई होती है कि मुखालफत करनी है, वो हज में भी लोगों को नमाज जमा नहीं करने देते, कसर भी नहीं करने देते, जमा भी नहीं करते। अल्लाह ताला महफूज फरमाए उस जंग से जिसमें
मसलक जीत जाए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आवाजें दी जाती हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 8 तारीख को मीना में, वैसे तो आप जितने दिन मक्का में रहे हैं कसर की है, आप मीना में आए हैं तो नमाज फिर कसर की, मगर जमा नहीं की। 8 तारीख को जोहर के वक्त आए हैं, जोहर 2 रकत, असर अपने वक्त में 2 रकत, मगरिब 3 रकत, ईशा अपने वक्त में 2 रकत, फजर आपने पढ़ी है और उसके बाद आप 9 तारीख को सूरज के होने के बाद रवाना हो गए। जोहर से पहले पहले आप उस वादी में पहुंचे हैं जिस में आज मस्जिद नमरा मौजूद है, वादी नमरा। आप दाखिल नहीं हुए अरफात में। यहां पे आपने जोहर भी कसर पढ़ी है, असर भी कसर पढ़ी है, मगर जमा करके पढ़ी है। अजान जोहर 1 अजान, इकामत कही गई 2 रकत जोहर, फिर 2 रकत इकामत कहने के बाद आपने असर पढ़ी है। जमा भी है, कसर भी है, मगर वहां लोग ढंडोरा पीट रहे होते हैं, कह रहे होते हैं लोग को नमाज जाया ना करे, आजे असर ना पड़े, आजे कली जोर पढ़ो, पूरी पढ़ो, असर पड़े आजे पूरी पढ़े आजे। यही लोग जब इनको टिकट सस्ता मिलता है तो पता नहीं केड़े केड़े वायदू होकर टुर जाते हैं जी, सस्ता लंबा जी। जब अल्लाह ताला नरमी करते हैं, ढील देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, कसर की इजाजत देते हैं और पैगंबर सुन्नत के साथ दिखाते हैं, उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात मुज़दलिफा में आए हैं। लोग रोक रहे होते हैं जी मगरिब वही पढ़ लें, वही पढ़ लें, अपना टाइम हो रहा है। नहीं, आपने मगरिब पहला टाइम है जिंदगी में कि अजान नहीं कही, सूरज गुरूब हो गया, कहा रवाना हो जाइए। लोग रवाना हो गए और जब मुज़दलिफा में पहुंचे अजान कही गई, फिर इकामत मगरिब की 3 रकतें, फिर इकामत कही गई और ईशा की 2 रकतें। फिर आप सोए। इस रात आपने तहज्जुद नहीं पढ़ी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगले दिन लगातार इसी तरह चलते रहे, हत्ता के 11 तारीख, 12 तारीख और 13 आप मीना में ठहरे हैं। आप नमाज कसर करते रहे और अपने अपने टाइम पे करते रहे, या आपने जमा नहीं की। तो जहां जमा मिले जमा, जहां कसर मिले कसर, जहां पूरी मिले पूरी। और यही एक मोमिन की शान है। नमाज की अदा, नमाज की कज़ा, इस बारे में 2 खुतबे डिटेल से तफसील से बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जो उलझने हैं वो सुलझनों में बदल जाए, जहां इल्म नहीं पता चल जाए, और जहां इल्म होने के बावजूद भी बदअमली है या लापरवाही है तो उससे हट करके इंसान को थोड़ी फिक्र करनी चाहिए कि मैंने कलमा नहीं पढ़ा। और उसके बाद आखिरी गुजारिश, ये जिस रात में नमाज मिली थी, लैलतुल मेराज, शबे मेराज, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहां तक इसका आपने एहतमाम किया कि पूरी उम्मत के किसी एक भी मुहक्किक को इसकी तारीख नहीं मिली। समझ रहे हैं? सन का तो पता है कि आमुल हुज़न था, उम्र 50 साल थी, नबूवत का 10वां साल था, महीना कौन सा था, तारीख कौन सी थी, ये इंसानों ने अपने अंदाज में तहदीद की है। वगरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगले साल भी मक्के में रहे हैं, उससे अगले साल भी आप मक्के में रहे हैं, उससे अगले साल आपने हिजरत की। इन दोनों सालों में मक्के में दुश्मनों के सीने के ऊपर दलील मौजूद थी और इससे अबुल हकम अबू जहल बन चुका था, और अब्दुल्ला जिनकी कुन्नियत अबू बकर है, ये सिद्दीक बन चुके थे इसी वाक़े की वजह से। तकजीब और तस्दीक, बनता तो था कि अगले साल इसका एहतमाम किया जाता, लेकिन शायद वहां पे हुकूमत गैर मुस्लिम थी, कंट्रोल उनका था और मसले थे। इसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में 10 साल लगातार, 11 इस महीने से पहले आप अल्लाह को प्यारे हो, 10 साल लगातार, ना आपने इसकी तारीख दी है, ना इसकी नाइट में स्पेशली कोई एहतमाम किया, कोई जो आपकी तहज्जुद थी वो चली, ना इसमें जगाया है, ना सुबह को रोजा रखो। जो अहकाम थे वो बयान कर दिए, जो मसाइल थे वो वाज़े कर दिए, और जो वहां वहां चीजें दिखाई गई वो उम्मत के हवाले कर दी।
अगली मुलाकात हम इंशाअल्लाह पैगंबर का मेराज, इसरा और उसमें होने वाले वाकयात और उसमें जिस वजह से जहन्नम दी गई, जन्नत की खुशखबरियां, जो जो आपने वहां देखा उसको इख्तिसार से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बयान करेंगे। और बयान करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है जितना हुजूर देते थे, कि गलत सही हो जाए और सही उस पर कायम हो जाए। अल्लाह का शुक्र करें। आपने जनाब बिलाल को जब देखा जन्नत में, सुना चलते हुए, तो बताया आके, इससे बढ़कर के कुछ नहीं। सहाबी ने अपने तौर पे मेहनत करके पता लगाया कि क्या करते हैं वो, खूबी क्या है, अमल क्या है। और आपने जब आकर के बताया तो उस बात को इतना बड़ा इशू नहीं बनाया गया जैसे हमारे यहां बना लेते हैं। आपने वापिस आके कहा कि मैंने जहन्नम में बहुत कुछ आपने देखा, लेकिन कहा कि ज्यादातर तादाद में मैंने खवातीन को। अब ये बात इस दौर में अगर की जाए तो बुरी लगेगी, क्योंकि मीडिया ने इसको इतना उछाला है, इस कदर तूफान बपा कर रखे कि नहीं। भाई सही है तो तब भी, गलत है तो तब भी, अल्लाह के पैमाने अपने, हमारी सोच के मुताबिक पैमाने नहीं बनते। रब की तौकीद अपनी है, निजाम अपना है, कह दिया। अब औरतों ने तूफान बपा नहीं किया, बल्कि आकर के वो अंदाज अपनाया जो एक मुखलिस और मुहतात इंसान को, पढ़े लिखे को, सलीका शियार बंदे को अपनाना चाहिए। ना ही मर्दों ने घर में जाकर के इसको बहुत ज्यादा उछाला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बयान किया गया कि आपने ऐसे कहा, बस दैट्स। अब खवातीन इकट्ठी होके आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस जुर्म की पादाश में जहन्नम ज्यादा औरतों से भरी हुई थी, वो जुर्म बता दे ताकि हम उससे बच सके, हम करें ना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उतनी ही बात की जितनी नबूवत का फरीजा होता है। मैंने ये देखा है कि सबब एक है नाशुक्री। नाशुक्री वहां लफ्ज है तकफुरन बिल्लाह, और शुक्र के मुकाबले में अरबी में लफ्ज कुफर आता है। अब डायरेक्ट नहीं कह दिया गया कि आप काफिर हैं, कहा कि तकफुरन बिल्लाह, आप रब की नाशुक्री करते हैं। रब की नाशुक्री, मैं इस पे मजीद डिटेल नहीं देना चाहता, हम सबको पता है कि रब ने हर तरह की नेमतों से भी नवाज रखा हो, कभी एहसासे कमतरी में और कभी एहसासे बरतरी का शिकार हो गए। पूरे घर के अंदर ऐसा माहौल बनाना जरूरी समझ लिया जाता है कि पता चले कि जो कुछ सी वो पेकियां च लभे, इत्थे कुछ नहीं लभे। और जब भी तरजीह दी जाए, हक बनता है, बड़े को बड़ा कहा जाए, मुअज़्ज़ज़ को मुअज़्ज़ज़ कहा जाए, मोहतरम को मोहतरम कहा जाए, लेकिन नहीं, अल्लाह की नाशुक्री सरे फहरिस्त। घर किदां दा दिता ही, सौरे किदां दे दिते नहीं, बंदा किदां दा दिता ही, लोग किस तरह दे, आ की आओ की, ये जिसको देखा एहसासे कब्र, उनको ये दिया है, साढ़े घर सारे दुख सुख ने, पता नहीं क्या देख लिया है, मौत के फरिश्ते ने मेरे घर का ही रुख कर लिया। तो भाई जो फैसले हैं ऊपर से, बेटा भी ले लिया हाथ में, तो तब भी मेरे महबूब ने रब की नाशुक्री का बोल नहीं बोला। बैन नहीं, मातम नहीं, गला फाड़ना नहीं, बाल नोचने नहीं, इसीलिए मना किया। रब की नाशुक्री का सबसे बड़ा एक मिनट पाया जाता है, खवातीन में है, हुजूर ने बयान कर दिया, ये नहीं कि मर्दों है, लेकिन ज्यादा जहां था वो बता दिया। दूसरे नंबर पे वह तकफुरनल एहसान, कोई नेकी करे तो नेकी का बदला नेकी बनता, भलाई का बदला भलाई बनता है। एक सुसर ले ले, इस शख्स ने अपना बेटा जवान करके, पाल पोस के, पढ़ा करके, तरबियतें करके उसके हवाले कर दिया और उसको लाके घर में इज्जत दी। अब ये मजबूर करे कि नहीं, अब्बे नू छड्ड, अम्मा नू छड्ड ते मेरे नाल चल। कुफर या नाशुक्री की बदतरीन किस्म है कि औरत शौहर को मजबूर करे। उन बूढ़ों को कहां छोड़ के जाए जिन्होंने तेरा बचपन संभाला था, और फिर अखबार में खबर लगे कि डॉक्टर साहब 6 साल बाहर पढ़ के बच्चों को ले गए थे, वापस आए हैं, तो जो इस घर में अम्मा रहती थी, अब उस घर में ताला लगा हुआ है, अम्मा नहीं है, किसी को अम्मा मिले तो इत्तला दीजिए।
यही निकालना है, यही सबक सीखा था। यही तीसरी बड़ी चीज, वह तकफुरनल अशीर, जिसके साथ रहती हैं, जिसके से अल्लाह ने दर्जनों औलाद से नवाजा है, नेमतों से नवाजा है, घर दिया है, छत दी है, दौलत माल दुनिया हर चीज से नवाजा है, मामूली सी लड़ाई हुई नहीं, तू मेरे लिए की मैनू तेरे तो की लबा है, तू कोई अनोखा किता है। ये 3 नाम लेके जुर्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब मर्जी है इसके ऊपर हुजूर की हदीस ठुकरा दी जाए, रद्द कर दी जाए, रिजेक्ट कर दी जाए, एतराज लगाए जाए, ब्लेम लगाया जाए, इल्हाद की शक्ल में, वो जी औरतों को दबाया गया है, मर्दों को कुछ नहीं कहा गया, उनमें भी मर्दों को भी कहा गया है, औरतों को भी कहा गया है, मर्दों का भी तज़किरा आएगा। तो इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में हम वो चीजें पढ़ेंगे जो दुनिया की नेमतों को जहन्नम की आग में बदलेंगे, और वो चीजें भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि दुनिया की मुश्किल तरीन जिंदगी और हालात को अल्लाह जन्नत में तब्दील करके रख देगा। तो नमाजों की अदा और नमाजों की कज़ा, उनका औकात, कैलेंडर, ये क्योंकि फर्ज है, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबुम मौकूता, उसके तहत बयान कर दी गई है। अगर फिर भी कोई मसला रह गया हो, क्योंकि मैं पूरे इहाते का दावा नहीं करता, तो सवालन जवाबन पूछा जा सकता है। अल्लाह ताला मुझ पे और आप पे रहम और करम करे और आसानियों की बारिश करे।